اچھی ساتھ دیکھ کر روانہ ہوا، لیکن ان کی طرف سے اپنی جانب میں ہوشیار رہتا اور سب صورت سے فرما برداری اور دل جوئی ان کی کرتا۔ ایک روز ایک منزل میں منزل بھائی نے مذکور کیا کہ ایک فرسخ اس مکان سے ایک چشمہ جاری ہے، مانند سلسبیل کے، اور میدان میں خود رو کوسوں تک لالا و نافرما اور نرگس و گلاب پھولا ہے۔ واقعی عجب مکان سیر کا ہے، اگر اپنا اختیار ہوتا تو کل وہاں جا کر تفریح طبیعت کی کرتے اور ماندگی بھی رفع ہوتی۔ میں بولا کہ صاحب مختار ہے، فرماؤ تو کل کے دن مقام کرے اور وہاں چل کر سیر کرتے پھرے۔ یہ بولے، عزیز جاہ بہتر۔ میں نے حکم کیا کہ سارے قافلے میں پکار دو کہ کل مقام ہے، اور بکاول کو کہا کہ حاضری قسم قسم کی تیار کر کل سیر کو چلیں گے۔ جب صبح ہوئی ان دونوں برادروں نے کپڑے پان کمر باندھ کر مجھے یاد دلایا کہ جلد ٹھنڈے ٹھنڈے چلے اور سیر کیجیے۔ میں نے سواری مانگی، بولے کہ پاپ پیادہ جو لطف سیر کا ہوتا ہے سو سواری میں معلوم، نفروں کو کہہ دو گھوڑے ڈریا کر لے آویں۔ دونوں غلاموں نے کلیان اور قہوہ دان لے لیا اور ساتھ ہوئے، راہ میں تیر اندازی کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ جب قافلے سے دور نکل گئے، ایک غلام کو انہوں نے کسی کام کو بھیجا، تھوڑی دور آگے بڑھ کر دوسرے کو بھی اس کے بلانے کو رخصت کیا۔ کم بختی جو آئی میرے منہ میں جیسے کہ سو نے مہر دے دی، جو وہ چاہتے تھے سو کرتے تھے اور مجھے باتوں میں پرچائے لیے جاتے تھے، مگر یہ کتا ساتھ رہ گیا۔ بہت دور نکل گئے، نہ چشمہ نظر آیا نہ گلزار، مگر ایک میدان پر خار تھا، وہاں مجھے پیشاب لگا۔ میں بول کرنے کو بیٹھا، اپنے پیچھے چمک تلوار کی سی دیکھی، مڑ کر دیکھوں تو منجلے بھائی صاحب نے مجھ پر تلوار ماری کہ سر دو پارا ہو گیا۔ جب تلک بولوں کہ اے ظالم مجھے کیوں مارتا ہے، بڑے بھائی نشانے پر لگائی، دونوں زخم کاری لگے، تیورا کر گرا۔ تب ان دونوں بے رحموں نے بد خاطر جمع میرے تئی چور زخمی کیا اور لہو لہان کر دیا۔ یہ کتا میرے احوال دیکھ کر ان پر بھبکا، اس کو بھی گھائل کیا۔ بعد اس کے اپنے ہاتھوں سے اپنے بدنوں میں زخموں کے نشان کیے اور سروپا برہنہ قافلے میں گئے اور ظاہر کیا کہ حرامیوں نے اس میدان میں ہمارے بھائی کو شہید کیا اور ہم بھی لڑ بھیڑ کر زخمی ہوئے۔ جلدی کوچ کرو نہیں تو اب کارواں پر گر کر سب کو ننگیا لیں گے۔ قافلے کے لوگوں نے بدوؤں کا نام جو سنا وہی بدحواس ہوئے اور گھبرا کر کوچ کیا اور چل نکلے۔ میرے قبیلے نے سلوک اور خوبیاں ان کی سن رکھی تھی، جو مجھ سے دغائیں کی تھی۔ یہ واردات ان کاظموں سے سن کر جلد خنجر سے اپنے تئی ہلاک کیا اور جاں بحق تسلیم ہوئی۔ اے درویشو، اس خواجہ سگ پرست نے جب اپنی کیفیت اور مصیبت اس طرح سے یہاں تلک کہی، سنتے ہی مجھے بے اختیار رونا آیا۔ وہ سوداگر دیکھ کر کہنے لگا کہ قبلہ عالم، اگر بے ادبی نہ ہوتی تو برہنہ ہو کر میں اپنا سارا بدن کھول کر دکھاتا۔ تس پر اپنی راستی پر گریبان موڑھے تلک چیر کر دکھایا۔ واقعی 4 انگل تن اس کا بغیر زخم کے ثابت نہ تھا۔ میرے حضور سر سے امامہ اتارا، کھوپڑی میں ایسا بڑا گڑھا پڑا تھا کہ ایک انار سموچہ اس میں سماوے۔ ارکان دولت جتنے حاضر تھے سب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، طاقت دیکھنے کی نہ رہی۔ پھر خواجہ بولا کہ بادشاہ سلامت، جب یہ بھائی اپنی دانست میں میرا کام تمام کر کے چلے گئے، ایک طرف میں اور ایک طرف میں یہ سگ میرے نزدیک زخمی پڑا تھا، لہو اتنا بدن سے گیا کہ مطلق طاقت اور ہوش کچھ باقی نہ تھا۔ کیا جانوں دم کہاں اٹک رہا تھا کہ جیتا تھا۔ جس جگہ میں پڑا تھا ولایت سراندیپ کی سرحدی اور ایک شہر بہت آباد اس کے قریب تھا۔ اس شہر میں بڑا بت خانہ تھا اور وہاں کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، نہایت قبول صورت اور صاحب جمال۔ اکثر بادشاہ اور شہزادے اس کے عشق میں خراب تھے۔ وہاں رسم حجاب کی نہ تھی، اس سے وہ لڑکی تمام دن ہم جولیوں کے ساتھ سیر شکار کرتی پھرتی۔ ہم سے نزدیک ایک بادشاہی باغ تھا، اس روز بادشاہ سے اجازت لے کر اس باغ میں آئی تھی۔ سیر کی خاطر اس میدان میں پھرتی پھرتی آ نکلی، کئی خواصیں بھی ساتھ سوار تھیں۔ جہاں میں پڑا تھا آئیں، میرا کراہنا سن کر پاس کھڑی ہوئیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ بھاگی اور شہزادی سے کہا کہ ایک مردہ اور ایک کتا لہو میں شور بور پڑا ہے۔ ان سے سن کر آپ ملکہ میرے سر پر آئی، افسوس کھا کر کہا، دیکھو تو کچھ جان باقی ہے۔ 2-4 دائیوں نے اتر کر دیکھا اور عرض کی، اب تلک تو جیتا ہے۔ ترت فرمایا، امانت کالیچے پر لٹا کر باغ میں لے چلو۔ وہاں لے جا کر جرح سرکار کا بلا کر میرے اور میرے کتے کے علاج کی خاطر بہت تاکید کی اور امیدوار انعام و بخشش کا کیا۔ اس حجام نے سارا بدن میرا پوچھ پانچ کر خاک و خون سے پاک کیا اور شراب سے دھو دھا کر زخموں کو ٹانکے دے کر مرہم لگایا اور بید مشک کا عرق پانی کے بدلے میرے حلق میں چوایا۔ ملکہ آپ میرے سرہانے بیٹھی رہتی اور میری خدمت کرواتی اور تمام دن رات میں 2-4 بار کچھ شوربہ یا شربت اپنے ہاتھ سے پلاتی۔
बारे मुझे होश आया तो देखा कि एक मलका निहायत अफसोस से कहती है, किस जालिम खूंखार ने तुझ पर सितम ये किया, बड़े भूत से भी ना डरा। बाद 10 रोज के अर्क और शरबत और माजूनों की कुव्वत से मैंने आंख खोली, देखा तो अंदर का उखाड़ा मेरे आस पास जमा है और मलका सराहने खड़ी है। एक आह भरी और चाहा कि कुछ हरकत करूं, ताकत ना पाई। बादशाहजादी मेहरबानी से बोली कि ए अजमी, खातिर जमा रख, कूड़ मत। अगरचे कि सो जालिम ने तेरा ये हवाल किया, लेकिन बड़े बुत ने मुझको तुझ पर मेहरबान किया है, अब चंगा हो जाएगा। कसम उस खुदा की जो वाहिद है और ला शरीक है। मैं उसे देखकर फिर बेहोश हो गया। मलका ने भी दरियाफ्त किया और गुलाब पाश से गुलाब अपने हाथ से छिड़का। 20 दिन के अरसे में जख्म भर आए और अंगूर कर लाए। मलका हमेशा रात को जब सब सो जाते मेरे पास आती और खिला पिला जाती। गर्ज एक चिल्ले में गुस्ल किया। बादशाहजादी निहायत खुश हुई, हजाम को बहुत सा इनाम दिया और मुझको पोशाक पहनवाई। खुदा के फजल से और खबरगिरी और सही से मलका की खूब चाको चौबंद हुआ और बदन निहायत तैयार हुआ और कुत्ता भी फरबा हो गया। रोज मुझे शराब पिलाती और बातें सुनती और खुश होती। मैं भी एक आध नकल या कहानी अनूठी कहकर उसके दिल को बहलाता। एक दिन पूछने लगी कि अपना अहवाल तो बयान करो कि तुम कौन हो और ये वारदात तुम पर क्यों कर हुई। मैंने सारा माजरा अपना अव्वल से आखिर तक कह सुनाया। सुनकर रोने लगी और बोली कि अब मैं तुझसे ऐसा सलूक करूंगी कि अपनी सारी मुसीबत भूल जाएगा। मैंने कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुमने नए सर से मेरी जान बख्शी की है, अब मैं तुम्हारा हो रहा हूँ। वास्ते खुदा के इसी तरह मुझ पर हमेशा अपनी मेहरबानी की नज़र रखियो। गर्ज तमाम रात अकेली मेरे पास बैठी रहती और मोहब्बत रखती। बाज़े दिन दाई उसकी भी साथ रहती, हर एक तौर का जिक्र मज़कूर सुनती और कहती। जब मलका उठ जाती और मैं तन्हा होता, तहारत कर कोने में छुप कर नमाज पढ़ लेता। एक बार ऐसा इत्तफाक हुआ कि मलका अपने बाप के पास गई। मैं खातिर जमा से वजू करके नमाज पढ़ रहा था कि अचानक शहजादी दाई से बोलती हुई आई कि देखिए अजमी इस वक्त क्या करता है, सोता है या जागता है। मुझे मकान पर जो न देखा, ताज्जुब में हुई कि ये कहाँ गया, किसों से कुछ लगा तो नहीं लगाया। कोना कुतरा देखने लगी और तलाश करने लगी। आखिर जहाँ मैं नमाज कर रहा था वहाँ आ निकली। उस लड़की ने कबू नमाज काहे को देखी थी, चुपकी खड़ी देखा की। जब मैंने नमाज करके दुआ के लिए हाथ उठाए और सजदे में गया, बेख्तियार खिलखिलाकर हंसी और बोली, क्या ये आदमी सौदाई हो गया, कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। मैं हंसने की आवाज़ सुनकर दिल में डरा। मलका आगे आकर पूछने लगी कि ए अजमी, ये तू क्या करता था। मैं कुछ जवाब ना दे सका। इसमें दाई बोली, बला लूँ तेरे सदके गई, मुझे यूँ मालूम होता है कि ये शख्स मुसलमान है और लात मनात का दुश्मन है, अनदेखे खुदा को पूछता है। मलका ने ये सुनते ही हाथ पर हाथ मारा, बहुत गुस्से हुई कि मैं क्या जानती थी कि ये तुर्क है और हमारे खुदाओं से मुनकिर है। अभी हमारे बुत की गज़ब में पड़ा था, मैंने नाहक इसकी परवरिश की और अपने घर में रखा। ये कहती हुई चली गई। मैं सुनते ही बदहवास हुआ कि देखिए अब क्या सलूक करे। हमारे खौफ की नींद चाट हो गई। सुबह तक बेख्तियार रोया किया और आंसुओं से मुंह धोया किया। 3 दिन रात इसी खौफ वर्जा में रोते गुजरे, हरगिज आंख न झपकी। तीसरी शब मलका शराब के नशे में मखमूर और दाई साथ लिए मेरे मकान पर आई, गुस्से में भरी हुई और तीर कमान हाथ में लिए बाहर चमन के किनारे बैठी। दाई से प्याला शराब का मांगा, पी कर कहा, दैया वो अजमी जो हमारे बड़े बुत के कहर में गिरफ्तार है, मुआ या अब तक जीता है। दाई ने कहा, वल्लैया लूँ कुछ दम बाकी है। बोली, अब वो हमारी नज़रों से गिरा, लेकिन कह के बाहर आ गए। दाई ने मुझे पुकारा, मैं दौड़ा, देखूं तो मलका का चेहरा मारे गुस्से के तिमतिमा रहा है और सुर्ख हो गया है। रूह कालिब में ना रही। सलाम किया और हाथ बांध कर खड़ा हुआ। गजब की निगाह से मुझे देखकर दाई से बोली, अगर मैं इस दीन के दुश्मन को तीर से मारूं तो मेरी खता बड़ा बुत माफ करेगा या नहीं। ये मुझसे बड़ा गुनाह हुआ है कि मैंने इसे अपने घर में रखकर खातिरदारी की। दाई ने कहा, बादशाहजादी की क्या तकसीर है, कुछ दुश्मन ने जान कर नहीं रखा, तुमने इस पर तरस खाया, तुमको नेकी के एवज नेकी मिलेगी और ये अपनी बदी का समर बड़े बुत से पा रहेगा। ये सुनकर कहा, दाई इसे बैठने को कहे। दाई ने मुझे इशारत की कि बैठ जा। मैं बैठ गया। मलका ने और जाम शराब का पिया और दाई से कहा कि इस कम वक्त को भी एक प्याला दे तो आसानी से मारा जावे। दाई ने जाम दिया। मैंने बेउज़्र पिया और सलाम किया। हरगिज़ मेरी तरफ निगाह ना की, मगर कनखियों से चोरी चोरी देखती थी। जब मुझे सुरूर हुआ, कुछ शेर पढ़ने लगा। अजान जुमला एक बैत ये भी पढ़ी, काबू में हूँ मैं तेरे, गो अब जिया तो फिर किया, खंजर तले की सोने टुक दम लिया तो फिर किया।
सुन कर मुस्कुराई और दाई की तरफ देख कर बोली, क्या तुझे नींद आती है? दाई ने मर्जी पाकर कहा कि हाँ, मुझ पर ख्वाब ने गलबा किया है। वो तो रुखसत होकर जहन्नम वासिल हुई। बाद एकदम के मलका ने प्याला मुझसे मांगा। मैं जल्द भर कर रूबरू ले गया। एक अदा से मेरे हाथ से लेकर पी लिया। तब मैं कदमों पर गिर पड़ा। मलका ने हाथ मुझ पर झाड़ा और कहने लगी, ऐ जाहिल, हमारे बड़े बुत में क्या बुराई देखी जो गायब खुदा की परस्तिश करने लगा? मैंने कहा, इंसाफ शर्त है। टुक गौर फरमाए कि बंदगी के लायक वो खुदा है कि जिसने एक कतरे पानी से तुम सार का महबूब पैदा किया और ये हुस्न जमाल दिया कि एक आन में हजारों इंसान के दिल को दीवाना कर डालो। बुत क्या चीज़ है कि कोई उसकी पूजा करे? एक पत्थर को संग तराशों ने गढ़ कर सूरत बनाई और दाम अहमकों के वास्ते बिछाया। जिनको शैतान ने वरगलाना है वो मसनू को जाने जानते हैं। जिसे अपने हाथों से बनाते हैं उसके आगे सर झुकाते हैं। और हम मुसलमान हैं, जिसने हमें बनाया है हम उससे मानते हैं। उनके वास्ते दोज़ख, हमारे लिए बहिश्त बनाया है। अगर बादशाह ज़ादी ईमान खुदा पर लावे तब इसका मज़ा पावे और हक व बातिल में फ़र्क करे और अपने एतकाद को गलत समझे। बारे ऐसी ऐसी नसीहतें सुनकर उस संग दिल का दिल मलाइम हुआ। खुदा के फजलो करम से रोने लगी और बोली, अच्छा मुझे भी अपना दीन सिखाओ। मैंने कलमा तलकीन किया। उनने बस के दिल पढ़ा और तौबा इस्तग़फ़ार कर मुसलमान हुई। तब मैं उसके पाँव पड़ा। सुबह तक कलमा पढ़ती और इस्तग़फ़ार करती रही। फिर कहने लगी, भला मैंने तो तुम्हारा दीन कबूल किया, लेकिन माँ बाप काफिर हैं, उनका क्या इलाज? मैंने कहा, तुम्हारी बला से। जो जैसा करेगा वैसा पावेगा। बोली कि मुझे चचा के बेटे से मंसूब किया है और वो बुत परस्त है। कल को खुदा न ख्वास्ता ब्याह हुआ और वो काफिर मुझसे मिले और उसका नुत्फा मेरे पेट में ठहर जावे तो बड़ी कबाहत है। उसकी फिक्र अभी से किया चाहिए कि उस बला से निजात पाऊँ। मैंने कहा, तुम बात तो माकूल कहती हो, जो मिजाज में आवे सो करो। बोली कि अब मैं यहाँ ना रहूँगी, कहीं निकल जाऊँगी। मैंने पूछा, किस सूरत से भागने पाओगी और कहाँ जाओगी? जवाब दिया कि पहले तुम मेरे पास से जाओ, मुसलमानों के साथ सराय में जा रहो तो सब आदमी सुने और तुम पर गुमान ना ले जावे। तुम वहाँ कश्तियों की तलाश में रहो जो जहाज अजम की तरफ चले। मुझे खबर कीजो, मैं उस वास्ते दाई को तुम्हारे पास अक्सर भेजा करूँगी। जब तुम कहला भेजोगे मैं निकल कर आऊँगी और कश्ती पर सवार होकर चली जाऊँगी। इन कमबख्त बेदीनों के हाथ से मुखलसी पाऊँगी। मैंने कहा, तुम्हारे जानो ईमान के कुर्बान हुआ। दाई को क्या करोगी? बोली, उसकी फिक्र सहल है, एक प्याले में जहर हलाहल पिला दूंगी। यही सलाह मुकर्रर हुई। जब दिन हुआ मैं कारवां सरा में गया। एक हुजरा किराए लिया और जा रहा। उस जुदाई में फ़कत वसील की तवक्को पर जीता था। जब 2 महीने में सौदागर रूम और शाम और अस्फहान के जमा हुए, इरादा कूच का तरी की राह से किया और अपना असबाब जहाज पर चढ़ाने लगे। एक जगह रहने से अक्सर आशना सूरत हो गए थे। मुझसे कहने लगे, क्यों साहिब तुम भी चलो, यहाँ कुफरिस्तान में कब तलक रहोगे? मैंने जवाब दिया कि मेरे पास क्या है जो अपने वतन को जाऊँ। यही एक लोंडी, एक कुत्ता, एक संदूक भी साथ में रखता हूँ। अगर थोड़ी सी जगह रहने को दो और इसका नूल मुकर्रर करो तो मेरी खातिर जमा हो, मैं भी सवार हूँ। सौदागरों ने कोठरी मेरे तहत में कर दी। मैंने उस कानूल का रुपया कर दिया। दिल जमी कर किस्सों बहाने से दाई के घर गया और कहा, ऐ अम्मा, तुझसे रुखसत होने को आया हूँ, अब वतन को जाता हूँ। अगर तेरी तवज्जो से एक नज़र मलका को देख लूँ तो बड़ी बात है। बारे दाई ने कबूल किया। मैंने कहा, मैं रात को आऊँगा, फलाने मकान पर खड़ा रहूँगा। बोली, अच्छा। मैं कहकर सरा में आया, संदूक और बिछोने उठाकर जहाज में लाया और नाखुदा को सौंप कर कहा, कल फजर को अपनी कनीज को लेकर आऊँगा। नाखुदा बोला, जल्द आइयो, सुबह हम लंगर उठावेंगे। मैंने कहा, बहुत खूब। जब रात हुई उस मकान पर जहाँ दाई से वादा किया था जाकर खड़ा रहा। रात गए महल का दरवाज़ा खुला और मलका म्याले कुचेले कपड़े पहने एक पेटी जवाहिर के लिए बाहर निकली। वो पटारी मेरे हवाले की और साथ चली। सुबह होते किनारे दरिया के हम पहुँचे। एक लंगूट पर सवार होकर जहाज में जा उतरे। ये वफादार कुत्ता भी साथ था। जब सुबह खूब रोशन हुई, लंगर उठाया और रवाना हुए। बखातिर जमा चले जाते थे। एक मंदिर से आवाज़ सोपड़ों की शुल्क की आई। सब हैरान और फिक्रमंद हुए। जहाज को लंगर किया और आपस में चर्चा होने लगा कि क्या शाह बंदर कुछ दगा करेगा, तोप छोड़ने का क्या सबब है। इत्तफाकन सब सौदागरों के पास खूबसूरत लौंडियाँ थीं। शाह बंदर के खौफ से कि मुबादा छीन ले, सब ने कनीज़ों को संदूकों में बंद किया। मैंने भी ऐसा ही किया कि अपनी शहजादी को संदूक में बिठाकर कुफ्ल कर दिया। इस अरसे में शाह बंदर एक घुर्राब पर बमा नौकर चाकर बैठा हुआ नजर आया। आते आते जहाज पर आ चढ़ा।
शायद उसके आने का ये सबब था कि बादशाह को दाई के मरने की और मलका के गायब होने की जब खबर मालूम हुई, मारे गैरत के उसका नाम तो न लिया, मगर शाह बंदर को हुक्म किया कि मैंने सुना है अजमी सौदागरों के पास लौंडियाँ खूब है, सो मैं शहजादी के वास्ते लिया चाहता हूँ। तुम उनको रोक कर जितनी लौंडियाँ जहाज में हूँ हुजूर में हाजिर करोगे। उन्हें देख कर जो पसंद आवेगी उनकी कीमत दी जाएगी, नहीं तो वापस होंगी। बामुजब हुक्म में बादशाह के ये शाह बंदर इसलिए आप जहाज पर आया और मेरे नज़दीक एक और शख्स था, उसके पास भी एक बांदी कबूल सूरत संदूक में बंद थी। शाह बंदर उसी संदूक पर आकर बैठा और लौंडियों को निकलवाने लगा। मैंने खुदा का शुक्र किया कि भला बादशाह ज़ादी का मज़कूर नहीं। गर्ज जितनी लौंडियाँ पाई शाह बंदर के आदमियों ने नाव पर चढ़ाई और खुद शाह बंदर जिस संदूक पर बैठा था उसके मालिक से भी हंसते हंसते पूछा कि तेरे पास भी तो लौंडी थी। उस अहमक ने कहा, आपकी कदमों की सौगंध, मैंने ही ये काम नहीं किया, सबों ने तुम्हारे डर से लौंडियाँ संदूकों में छुपाई हैं। शाह बंदर ने ये बात सुनकर सब संदूकों को झाड़ा लेना शुरू किया। मेरा भी संदूक खोला और मलका को निकाल कर सबके साथ ले गया। अजब तरह की मायूसी हुई कि ऐसी हरकत पेश आई कि तेरी जान तो मुफ्त गई और मलका से देखी क्या सलूक करे। उसकी फिक्र में अपनी भी जान का डर भूल गया। सारे दिन रात खुदा से दुआ मांगता रहा। जब बड़ी फजर हुई सब लौंडियों को कश्ती पर सवार करके लाए। सौदागर खुश हुए, अपनी अपनी कनीज के लिए सब आया, मगर एक मलका उनमें ना थी। मैंने पूछा कि मेरी लौंडी नहीं आई, इसका क्या सबब है? उन्होंने जवाब दिया, वाकिफ नहीं, शायद बादशाह ने पसंद की होगी। सब सौदागर मुझे तसल्ली और दिलासा देने लगे कि खैर जो हुआ सो हुआ, तू कुढ़ मत, इसकी कीमत हम सब बहरी कर कर तुझे देंगे। मेरे हवास बाख्ता हो गए। मैंने कहा कि अब मैं अजम नहीं जाने का। कश्ती वालों से कहा, यारो मुझे भी अपने साथ ले चलो, किनारे पर उतार दीजो। वो राजी हुए। मैं जहाज से उतरकर कुराब में आ बैठा। ये कुत्ता भी मेरे साथ चला आया। जब बंदर में पहुंचा, एक संदूकचा जवाहिर का जो मलका अपने साथ लाई थी उसे तो रख लिया और सब असबाब शाह बंदर के नौकरों को दिया। और मैं जासूसी में हर कहीं फिरने लगा कि शायद खबर मलका की पाऊं, लेकिन हरगिज सुराग ना मिला और न उस बात का पता पाया। एक रात को किस्सो मकर से बादशाह के भी महल में गया और ढूंढा, कुछ खबर न मिली। करीब एक महीने के शहर के कूचे और मोहल्ले छान मारे और इस गम से अपने करीब हलाकत के पहुंचाया और सौदाई सा फिरने लगा। आखिर अपने दिल में ख्याल की कि गालिब है कि शाह बंदर के घर में मेरी बादशाहजादी होवे तो होवे, नहीं तो और कहीं नहीं। शाह बंदर की हवेली के गिर्द पेश देखा फिरता था कि कहीं से भी जाने की राह पाऊं तो अंदर जाऊं। एक बदर रूह नजर पड़ी कि मवाफिक आदमी की आमदोरफ्त के है, मगर जाली आहानी उसके दहाने पर जुड़ी है। ये कष्ट किया कि इस बदर रूह की राह से चलूं। कपड़े बदन से उतारे और इस नजस कीचड़ में उतरा। हजार मेहनत से उस जाली को तोड़ा और सुंडास की राह से चोर महल में गया। औरतों का सा लिबास बनाकर हर तरफ देखने भालने लगा। एक मकान से आवाज मेरे कान में पड़ी जैसे कोई मनाजात कर रहा है। आगे जाकर देखूं तो मलका है कि अजब हालत से रोती है और न किसनी कर रही है और खुदा से दुआ मांगती है कि सदके अपने रसूल के और उसकी आल पाक के मुझे इस कुफरिस्तान से निजात दे, और जिस शख्स ने मुझे इस्लाम की राह बताई है उससे एक बार खैरियत से मिला। मैं देखते ही दौड़कर पाँव पर गिर पड़ा। हम दोनों पर एकदम बेहोशी का आलम हो गया। जब हवास बजा हुए मैंने कैफियत मलका से पूछी। बोली, जब शाह बंदर सब लौंडियों को किनारे पर ले गया, मैं खुदा से ही दुआ मांगती थी कि कहीं मेरा राज फाश ना हो और मैं पहचानी ना जाऊं और तेरी जान पर आफत ना आवे। वो ऐसा सत्तार है कि हर किसी सोने ना दरियाफ्त किया कि ये मलका है। शाह बंदर हर एक को बनजर खरीदारी देखता था। जब मेरी बारी हुई मुझे पसंद कर कर अपने घर में चुपके भेज दिया, औरों को बादशाह की हुजूर गुजराना। मेरे बाप ने जब उनमें मुझे ना देखा सबको रुखसत किया। ये सब पर बीज मेरे वास्ते किया था। अब यूँ मशहूर किया है कि बादशाहजादी बहुत बीमार है। अगर मैं जाहिर न हुई तो कोई दिन मेरे मरने की खबर सारे मुल्क में उड़ेगी तो बदनामी बादशाह की ना होवे। लेकिन अब मैं इस अज़ाब में हूँ कि शाह बंदर मुझसे और इरादा दिल में रखता है, लेकिन मैं राजी नहीं होती। बस के चाहता है। अब तक मेरी रजामंदी मंजूर है, लिहाजा चुप हो रहता है, पर हैरान हूँ इस तरह कहाँ तक निभेगी। सो मैंने भी जी में ये ठहराया है कि जब मुझसे कुछ और कष्ट करेगा तो मैं अपनी जान दूंगी और मर रहूंगी। लेकिन तेरे मिलने से एक और तदबीर दिल में सूझी है। खुदा चाहे तो सिवाय इस फिक्र के दूसरी कोई तरह मुखलसी नजर नहीं आती। मैंने कहा, फरमाओ तो वो कौन सी तदबीर है? कहने लगी, अगर तू सही और मेहनत करे तो हो सके। मैंने कहा, मैं फरमा बरदार हूँ। अगर हुक्म करो तो जल्दी आग में कूद पड़ूं और सीढ़ी पाऊं तो तुम्हारी खातिर आसमान पर चला जाऊं।